نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے فرانسیسی صدر کے خلاف غم و غصے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں بھی فرانسیسی صدر کے اہانت آمیز بیان کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ رضا اکیڈمی نے بھی اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی اپیل کی اور ممبئی پولیس سے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف FIR درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ممبئی کے رضا اکیڈمی کے مفتی حسن خان منظر اشرفی نے فرانس کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ مسلم ممالک کو فرانس سے سفارتی رشتے ختم کرنا لازمی ہے، ساتھ ہی مسلم ممالک فرانس کے مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور فرانس کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں قانونی کارروائی ہو، چونکہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ نبی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرانس کے صدر میکرون نے گستاخی کی ہے۔ اس کی گستاخی کرنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، لہذا رضا اکیڈمی اپیل کرتی ہے کہ فرانس کے جتنی بھی مصنوعات ہیں، اس کے پروڈکٹ ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو نہ خریدیں، اور 12 ربیع الاول شریف یعنی 30 اکتوبر کو جس دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اس روز کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منائیں، اور آپ اس دن اپنے ہاتھ میں پرچم رسالت لیں، جھنڈا لیں، اور اس دن جھنڈا بلند کریں، اور جہاں پر بھی جائیں آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہو۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے دورہ ہند سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید تقویت ملی ہے۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازع میں بھی 2+2 ملاقات نے ہندوستانی موقف کو مضبوطی دی۔ اس دورے کی باریکیوں اور اس کے خطے کے اثرات پر اپنا موقف رکھنے کے لیے براہ راست ہمارے ساتھ لندن سے جڑے ہیں امریکی دفتر خارجہ کے اردو ترجمان زیڈ تارڑ۔ زیڈ تارڑ صاحب، بہت بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ ہند امریکہ 2+2 مذاکرات ہوئے، کس طرح کے مثبت نتائج ہم کو دیکھنے کو ملیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 2+2 فارمیٹ ہے، یہ ہم صرف اپنے سب سے قریبی دوستوں کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ہر دوسرے ملک کے ساتھ ہم یہ فارمیٹ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے اسی موقع پر ہم نے کئی نئے MOUs کو سائن کیے، کو قائم کیے ہیں ہم نے۔ مثال کے طور پر ایک BECA ہے جو کہ کافی مشہور ہو چکا ہے اب بھارت میں، اور اس اگریمنٹ کے حوالے سے ہم براہ راست ایک مشترکہ ڈیٹا کنیکشن کر سکتے ہیں جیو اسپیشل ڈیٹا میں، یعنی یہ سیٹلائٹ امیجری، نیویگیشن امیجری، اور یہ صرف ایک چھوٹا سا مثال ہے ایک بہت بڑی اور اہم قسم کی دوستی کے ساتھ اور ایک ریلیشن شپ میں۔ بالکل، یہ 2+2 ملاقات کو کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ ملاقات میں مختلف باہمی، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ ہندوستان کے چین اور پاکستان کے ساتھ جس طرح سے تعلقات ان دنوں چل رہے ہیں، کیا اس پر بھی کچھ اثر دیکھنے کو ملے گا اس ملاقات کے بعد؟ جی، شاید اگر ہم اس کو 2+2 مذاکرات کو تھوڑا فاصلہ سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی ایسے ارادے نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں جیسے نیٹو، لیکن انڈو پیسیفک میں۔ یہ ہمارے ارادے نہیں ہیں۔ ہمارے ارادے یہ ہے سب سے پہلے کہ ہماری دوستی بھارت کے ساتھ اور مضبوط ہو، کیونکہ جب ہماری دوستی مضبوط ہے، جب ہماری ریلیشن شپ مضبوط ہے، تو دونوں امریکہ، انڈیا، بلکہ پورے علاقے کا فائدہ ہے۔ بالکل، وزارت خارجہ اور وزارت دفاع دونوں کا آج دورہ ہوا، دونوں نے ملاقات کی۔ اب دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے کس طرح کی پیش رفت کی امید ہم کر سکیں گے؟ جی بالکل، آپ نے ایک بہت اہم بات ہے۔ جہاں تک اگر ہم دفاع کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر امریکہ انڈیا تعاون کو ذرا قریب سے دیکھیں تو ہمیں ایک سٹوری نظر آتی ہے کہ چند سالوں سے یہ بہت ہی گہرا قسم کے اور مضبوط قسم کا ایک ریلیشن شپ ہے۔ میں آپ کو کئی فگرز دیتا ہوں اس میں۔ گزشتہ سال $20 بلین کا ڈیفنس ٹریڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے
अप्रूव किया है, यानी कि ये $20 बिलियन का हमारे डिफेंस ट्रेड का रिलेशन सिर्फ एक साल में। और C-17 P-8 जहाज़ का फ्लीट, सबसे बड़ा फ्लीट जो है अमेरिका के बाहर इंडिया में है। और हमने एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज किया, यानी कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज किया है, यानी कि नेवी, मरीन्स और फौज मिलकर, एयरफोर्स मिलकर हमने एक साथ भारत के साथ एक एक्सरसाइज किया है। और आने वाले दिनों में मलबार एक्सरसाइज भी हम में हिस्सा लेंगे हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के साथ, जबकि ये सबसे पहला मौका होगा 2007 से जब पूरी क्वाड जो है एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे इंडो पैसिफिक में। तो अगर आप इन मिसालों को देखें तो ये इंतहाई अहम किस्म का रिलेशनशिप है। बल्कि वज़ीर दिफा एस्पर का खुद कहना था कि ये 21वीं सदी, अमेरिका इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप 21वीं सदी का सबसे अहम तावन है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह भी काफ़ी पुरुम्मीद नजर आए इस मुलाकात से। बहुत बहुत शुक्रिया जेड तारड़ साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। फ्रांस के सदर के ज़रिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहानत किए जाने के खिलाफ भोपाल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भारतीय समाज संघ के कारकुनान ने भोपाल मसाजिद कमेटी के सामने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम से भोपाल कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया और मरकजी हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत करते हुए फ्रांस की अशिया का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने फ्रांस के सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर फ्रांस के सदर अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। ये है कि जो मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने जो हरकत की है वहाँ पर एक सेक्शन में जो कार्टून बनाया और उसी कार्टून को उन्होंने पूरे फ्रांस में वोटिंग की शक्ल में लगवा दिया, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम उसकी उम्मत में जो माफ़ करना जानता है, जिसने हमेशा माफ़ किया लोगों को, चाहे कचरा फेंकने वाले हों चाहे और नुकसान पहुँचाने वाले हों। तो हम भी इनके लिए इनको माफ़ तो करते हैं साथ में, लेकिन हिदायत दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराम करना कांग्रेस की तरजीहात में शामिल है। इस तरह का बयान रियासत के वजीर बराए तामीरात आम्मा अशोक चौहान ने दिया। इनका कहना है कि कांग्रेस ने कभी इस मामले को नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन चूंकि तमाम तबकात को साथ लेकर चलना है, मुस्लिम के अलावा ओबीसी, धींगर और मराठा रिजर्वेशन का मामला भी ज़ेर गौर है। अशोक चौहान जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इससे कबल रियासती वजीर ने औरंगाबाद के हरसोल में जहांगीर कॉलोनी, सईदा कॉलोनी और दीगर बस्तियों का दौरा किया, उनके मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। आरक्षणाची भूमिकाच आहे। काँग्रेस पक्षाने मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत म्हणजे काँग्रेस पक्षाच्या कानावर त्याला कुठे अडचण नाही, तो तोही प्रश्न पण एक विषय एकदम समजून चालणार नाही। इतरही पक्ष, ओबीसीचे विषय आहेत, मुस्लिम आरक्षणाचा विषय आहे, धनगर समाजाचे विषय आहे, सगळ्यांचेच विषय आहेत। त्यामुळे आता सगळी प्रक्रिया मागे लागते। मुख्यमंत्र्यांनी परवाच ओबीसीच्या बाबतीमध्ये बैठक घेतली मुंबईत, त्याला तिथे सुद्धा एक सब कमिटी त्यांनी गुंडे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण केलेली आहे। ये सगळे प्रश्न मागे लावण्यात फक्त सरकार भोपाल मसाजिद कमेटी ने तारीखी कदम उठाते हुए अइम्मा व मोज़नीन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात का आगाज़ कर दिया है। तारीखी कदम के तहत न सिर्फ अइम्मा व मोज़नीन बल्कि उनके अहले खाना को भी कोरोना कहर में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम होंगी। इससे पहले बातें तो बहुत की गई, मगर ये पहला मौका है जब तिब्बी सहूलियात की फराहमी के मामले को अमली जामा पहनाया गया है। पेश खास रिपोर्ट। भोपाल में मसाजिद कमेटी का क़याम रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच हुए इंज़माम के रूह से अमल में आया था। मसाजिद कमेटी के तहत अइम्मा व मोज़नीन, दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा, मसाजिद कमेटी स्टाफ और एक स्कूल भी आता है। मसाजिद कमेटी के अइम्मा व मोज़नीन को नजराना मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फ़लाह व बहबूद की जानिब से दिया जाता है, लेकिन कलील नजराना भी वक्त पर नहीं मिलने से बाज़ औक़ात अइम्मा व मोज़नीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोरोना कहर में जहां गुज़िश्ता 6 माह से मसाजिद कमेटी के अइम्मा व मोज़नीन को हुकूमत की जानिब से नजराना नहीं मिल सका है, ऐसे में इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
इस मुश्किल वक्त में जहां घर चलाना मुश्किल हो रहा है और अगर किसी इमाम या मुअज्जिन के घर का कोई फर्द बीमार हो जाता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसे किन मुश्किलात से गुजरना होता होगा। मसाजिद कमेटी ने आइम्मा व मुअज्जिनीन की मुश्किलात को देखते हुए ये तारीखी कदम उठाया है। कमेटी की तरफ से ये एक तारीखी कदम है और हमने यहाँ पर आके देखा था कि इमाम मुअज्जिन हजरात जितने भी हैं उनके एक लिमिटेड यहाँ से तनख्वाह के रूप में पैसे कुछ दिए जाते हैं, 2000, 3000, 4000, 500, 2000 से लेके कई एक का तो ये देखा मैंने सिर्फ 600 रुपये मशाहरा दिया जाता था यहाँ से। तो हमने ये चीज़ जहन में रखते हुए एक नई स्कीम शुरू करी है कि तमाम जो 550 हमारे यहाँ इमाम मुअज्जिन हैं उनके इलाज के लिए बिल्कुल फ्री इंतज़ाम किया है। मसाजिद कमेटी ने आइम्मा व मुअज्जिनीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने का कदम भोपाल AB अस्पताल के इश्तराक से उठाया है। इसके अखराजात मसाजिद कमेटी और शहर के मुखय्यर हजरात उठाएंगे। जिनके पीछे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारी उनके कहीं कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, तो मसाजिद कमेटी से इस सिलसिले में हमने बात की तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि हम आइम्मा और मुअज्जिनीन और उनकी फैमिलीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त कंसल्टेशन देंगे। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई और हम इस तारीख़ी कदम का खैर मकदम करते हैं। आइम्मा मुअज्जिनीन के हक़ में ये बहुत ही अच्छा और तारीख़ी कदम है। हम डॉक्टर साहब का, डॉक्टर ज़फ़र साहब और ABP हॉस्पिटल और तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस नाजुक दौर में कोरोना काल में आइम्मा मुअज्जिनीन के लिए फ्री इलाज का ये कदम उठाया है। मसाजिद कमेटी के जरिए आइम्मा व मुअज्जिनीन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात का आगाज किए जाने के लिए भोपाल AB अस्पताल में मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान के साथ शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी शिरकत की और कार खैर को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। प्रोग्राम का इख्तिताम इज्तिमाई दुआ के साथ हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। कल से 5 महीनों की तनख्वाह को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान करने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अरकान के जरिए यकीन दहानी कराए जाने के बाद 1 हफ्ते के लिए हड़ताल मुलतवी कर दी है। बोर्ड के मुलाजमीन बुध के रोज़ एहतजाज को लेकर पुलिस से इजाज़त भी मांग ली थी, लेकिन बोर्ड के अरकान की जानिब से इनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराने के बाद फिलहाल हड़ताल पर न जाने का इन्होंने फैसला किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अरकान ने वक्फ बोर्ड के CEO को खत लिखकर मीटिंग तलब करने को कहा, साथ ही मुलाजमीन से हड़ताल पर न जाने की अपील की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में 70 से ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। इन्हें गुज़िश्ता 5 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है, जिसकी वजह से इन पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये है कि हमने CEO साहब को चिट्ठी लिखी है और CEO साहब ने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है लीगल ओपिनियन के लिए, और हमने रिक्वेस्ट की है कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए। बोर्ड की जिस दिन मीटिंग हो जाएगी तो उसी में जो अथोराइज सिग्नेटरी है उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, रेजोल्यूशन पास करके दे दिया जाएगा, तो इनका मसला हल हो जाएगा। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की एम्प्लॉइज़ से कि कोई हड़ताल ना करें और हम लोग इस पे लगे हुए हैं। जितने जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सकता है हम इसको काबू करेंगे। नहीं सर, अभी कोई अपडेट नहीं है। वो उसी मसला सारा सैलरी को लेके ही है और जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है उनको लेके कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं। ग्रांट है कि CEO साहब अगर चाहें तो ग्रांट हमारी जो फंसी हुई है गवर्नमेंट के पास वो भी आ सकती है। उसके अलावा हमारी एक और डिमांड है कि हमें परमानेंट CEO दिया जाए, क्योंकि कोई CEO आता है वो 6 महीने रहता है, 1 साल रहता है, और जब वो किसी प्रॉपर्टी पे या 54 पे काम करना शुरू कर देता है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो ये सारी डिमांड्स हैं। अब देखते हैं अगर मेम्बरान हमें बुलाते हैं मीटिंग के लिए उसमें क्या निकलता है। आगे की सारी रणनीति उस पर डिपेंड करती है। सर मुझे नौकरी करते 1 साल हो गया और तनख्वाह हमारी 5 महीने से नहीं मिली सफाई वालों की, और हमारे कुछ स्टाफ की 9 महीने से नहीं मिल रही, और सब परेशान है, खर्चे पानी हर एक तरीके से हालत ख़राब है हमारी। तो इस वक्त मेरी भी खुद की तबीयत ख़राब है, मगर ड्यूटी करेंगे जब भी काम हो सकता है। लॉकडाउन से लेकर अब तक हमने पूरी मेहनत से काम करा, हमारे स्टाफ ने वाले वक्फ बोर्ड के स्टाफ वालों ने भी और सफाई कर्मचारी। वैसे तो कहती है सरकार कि भाई डॉक्टर सफाई कर्मचारी हमारे योद्धा हैं। अरे योद्धा तो हमारे सफाई वाले तो भूखे मर रहे, काहे के योद्धा हैं। यूपी में गौकुशी के नाम पर होने वाली गिरफ्तारियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने अपने तबसरे में कहा कि यूपी में इंसदाद गौकुशी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि गौकुशी के इल्जाम में ऐसे लोगों को जेल भेजा जा रहा है जिन्होंने ये जुर्म किया ही नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि बरामदशुदा मुश्तबा गोश्त की फॉरेंसिक लैब में जांच के बगैर ही गौकुशी के इल्जाम में लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को यह हुक्म भी दिया है कि वो रियासत में गौशाला के निज़ाम को
बेहतर बनाए और इंसदाद गौकुशी के कानून के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाए। वाज़ेह है कि शामली ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले रहीमुद्दीन को मुकामी पुलिस ने गौकुशी के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 5 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रहीमुद्दीन की ज़मानत अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत और पुलिस के तौर तरीक़ों पर सख्त तबसरे किए। अदालत ने ज़मानत अर्जी पर समाअत के बाद रहीमुद्दीन को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है। काऊ प्रोटेक्शन का जिस पर्पस के लिए ये लॉ बनाया गया, वही एक रिलीजियस पहचान है, गाय की एक रिलीजियस सैंक्टिटी है। उस रिलीजियस सैंक्टिटी को मेंटेन रखने के लिए ये एक्ट बनाया गया और इसमें सख्त प्रोविजंस किए गए कि भाई इसका किसी तरह से गाय को नुकसान न पहुंचे। उसके लिए आपने गौशाला बनाए। उन गौशालाओं की क्या हालत है, इसके ऊपर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि वहाँ पे जो गाय दूध देती हैं उनको तो गौशाला में एक्सेप्ट किया जाता है, जो गायें दूध नहीं देती उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और उनको फिर सड़क के ऊपर वही पन्नियाँ और कूड़ा और गटर में खाने के लिए सब वर्ड्स कोर्ट ने यूज़ किए। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि काऊ स्लॉटर एक्ट का जो पर्पस है उस पर्पस को गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही। ये फुलफिल करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उसको उनको मेंटेन करना है। ये 3 पर्पस इससे है, इसी वजह से इसकी नेशनल इम्पोर्टेंस। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तमाम शोबे हयात के लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इन परेशानियों से निजी तौर पर छोटे सतह के इस्लामिक स्कूल चलाने वाले मुंतज़मीन और मुलाजमीन को भी 2-4 होना पड़ा। छोटे बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के मकसद से कायम ऐसे इदारों में बड़ी तादाद में ऐसी तालिबात भी अपनी खिदमत पेश करती हैं जो इन खिदमत के एवज़ में हासिल करदा मेहनताना से अपनी आला तालीम के हुसूल का ख्वाब पूरा करती हैं। इन तालिबात का कहना है कि लॉकडाउन में इन्हें माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने वाज़ेह किया कि कराची में वाक़े आधे दर्जन से ज़्यादा इस्लामी स्कूल या तो बंद हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस की बुनियाद पर चल रहे हैं वहाँ के टीचरों को कम तनख्वाह पर सब्र करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल इंतज़ामिया ने हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। कि हमने जैसे इस्लामिक स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक एनवायरनमेंट जो हमें मिल रही थी स्कूलों से, तो अब हमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम जितने बहनें थे इस स्कूल में बहुत ही उम्मीद से गए थे कि हमारी कुछ सेल्फ डेवलपमेंट भी हो और हमारी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू हो, उस हमारे खर्चे भी निकले। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया है लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, हमारी मैनेजमेंट भी बहुत परेशान है, पेरेंट्स भी फिनेंशियली बहुत वीक हो चुके हैं और बच्चे की फीसेस देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ना हम पेरेंट्स को दबाव दे सकते हैं ना हम मैनेजमेंट को कुछ बोल सकते हैं। इस वजह से हमारी भी बहुत फिनेंशियली बहुत ही हमारी कंडीशन ख़राब हो गई है। हमारी जो सैलरी थी वो हमारी उसमें कमी आ गई है और हम इस वजह से परेशान हैं कि आगे जो हमारी पढ़ाई थी, हमारी जो फिनेंशियल जो खर्चे थे वो कैसे होंगे। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सो इंशाल्लाह मैं यही दुआ करूँगी कि ये वबा जो है जितनी जल्द से जल्द हो वो दूर हो जाए और हमें इस परेशानी से ज़रूर निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। बेंगलुरु में उलमा और हुफ़ाज़ के बच्चों ने भी नीट के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। ये बच्चे अब सरकारी कोटे में मुफ्त MBBS सीट के लिए मुंतखब हुए हैं। अब्दुल कदीर, हुमैरा फिरदौस और रियान हाशमी, इन तीनों तलबा का ताल्लुक उलमा-ए-दीन के घरानों से है। बेंगलुरु के शाहीन तालीमी इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सुबहान ने कहा कि माशरे में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। मुझे 1 साल की मेहनत करूं तो मैं आके फिर से शाहीन में ज्वाइन हुई और माशाल्लाह सुभान सर की वजह से उन्होंने जो हमारे ऊपर मेहनत की है उसकी वजह से मुझे ये मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स मिले? 589 and alhamdulillah I have got 584 marks and all India rank is 28,120 and 2B and OBC rank is 11,500 and alhamdulillah I will be able to get MBBS government college MBBS seat in one of the government colleges in Karnataka। मदरसे पढ़ा, मक्का मस्जिद मदरसे में पढ़ाता हूँ मैं और हमारी भी ख्वाहिश थी कि बच्चा जो है दुनियावी तालीम भी हासिल, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम में भी जो है मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस करे कि ताकि कौम मिल्लत की खिदमत कर सके। बच्चे की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर जो है तालीम हासिल करूं और हमारी भी ख्वाहिश हुई कि बच्चे की ख्वाहिश को जो है पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने हत्तल मकदूर कोशिश की। मज़हब इस्लाम में जो है इसकी पूरी इजाज़त है, बल्कि जो है इस्लामी हुदूद में रहते हुए
इस्लामी हुदूद क्या हैं, पर्दे के साथ जाना, पर्दे के साथ आना, और जो कवानीन होते हैं, नमाज के औक़ात होते हैं, इनकी पाबंदी करते हुए इस्लाम में जो है पूरी की पूरी इजाज़त है वो दुनियावी तालीम हासिल करने की। तो उस लिहाज से जो है हमने उस पर कभी भी ये नहीं किया कि दीन पर चलते हुए दुनियावी तालीम का हासिल करना। जितने भी उलमा इकराम हैं, मुअज़्ज़िन साहब हैं, जो भी इमामत जो भी करते हैं, इन तमाम के माशी हालात से हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। अब इन हालात से अगर वो अपने बच्चों की तालीम के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हमें मालूम है कि क्या हो सकता है। ये कि वो नस्ल का फिर वही सेम सर्कल में जाता रहेगा कि उनके भी बच्चे फिर कोई मदरसे में जाएंगे, फिर वो मदरसे फिर बाहर रहेंगे, फिर उनके बच्चे मदरसे में जाएंगे, वो सर्कल चलता रहेगा। अगर किसी को मेन स्ट्रीम में आना है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में अगर आना है, तो किसी ना किसी को एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कोशिश थी हमारी कि कैसे हम इन उलमाओं के बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे मौलवी हजरात के जितने भी बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह जो नताइज नज़र आते हैं, हमारे मदरसा मोहम्मदिया मंसूरा के जो हजरत हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनका एक बेटा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पढ़ा और वो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में फ्री MBBS सीट हासिल करा। दूसरा बेटा आया अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल मुख्तदिर, जो ये साल 596 मार्क्स बच्चे ने लिए हैं। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में बच्चे की सीट। अजमेर के ज़िला कलेक्टर पर आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खुद्दाम और फूल के कारोबारी पहुंचे और ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में मांग की गई है कि दरगाह में फूल और चादर पेश करने की इजाज़त दी जाए। इनका कहना है कि फूल और चादर पेश करने की इजाज़त न मिलने की वजह से कारोबारी परेशान है। 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मेरठ में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। मेरठ में सीरत कमेटी की जानिब से हर साल जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद किया जाता है, लेकिन इस साल जुलूस की बरामदगी के लिए अब तक इजाज़त नहीं मिली है। कमेटी के जिम्मेदारान के मुताबिक जुलूस निकालने के लिए ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त का मुतालबा किया गया। ताहम अगर जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिलती है तो इस सूरत में मसाजिद और मदारिस में मिलाद और तकारीर के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस साल ये कोविड-19 की वजह से प्रोग्राम में कुछ तब्दीली नज़र आएगी। हम लोग थाने में परमिशन के लिए दे रखे हैं दरख्वास्त। अगर वो परमिशन मिल जाती है तो हुकूमत के गाइडलाइन की रोशनी में जुलूस को निकालेंगे और पैगाम मोहम्मदी को शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर यह है कि महदूद दायरे में प्रोग्राम करेंगे, दिन में भी करेंगे, रात में भी करेंगे। परमिशन मिल जाती है तो इंशाल्लाह उसी तरीके से होगा। परमिशन नहीं मिलती है तो अपने अपने महदूद दायरों में, जैसे मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, उसी तरीके से हम लोग काम तो चूँकि हमारा तो दिल जुड़ा हुआ है उनके साथ, हमारा ईमान उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम तो इस चीज़ से अलग नहीं हो सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को सबसे पहले अपने। कानपुर का कदीमी और तारीख़ी जुलूस मोहम्मदी इस साल कोरोना वायरस की वजह से नहीं निकाला जाएगा। तकरीबन 100 सालों से जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर कानपुर में जुलूस का एहतमाम किया जाता रहा। इंतज़ामिया और उलमा की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र इस साल जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस पूरे मामले पर शहर काजी अब्दुल कुद्दूस से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सुविता ने। जुलूस मोहम्मदी यानी कि कानपुर का तारीखी जुलूस, जो कि एशिया का सबसे लंबा जुलूस माना जाता है, इस बार इंतज़ामिया से मीटिंग के बाद जुलूस मोहम्मदी को लेकर बातचीत हुई है। शहर काजी हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं किस तरह की बातचीत हुई, क्या बात हुई है इंतज़ामिया से। क्या इंतज़ामिया से जो बात, हालांकि ये रबीउल अव्वल का जो जुलूस निकलता है, इस साल तकरीबन 107 जुलूस निकल चुके, 108वां जुलूस था ये, तो हमेशा जुलूस निकलता रहा। वो बड़ी मदद इंतज़ामिया की भी होती रही है और यहाँ के गैर मुस्लिम तबका वो भी काफ़ी मदद करता रहा, इसी बात नहीं। लेकिन इस साल चूँकि कोरोना वायरस की वजह से किसी तरह के कोई जुलूस वगैरह निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी देखिए 2 दिन पहले जो है वो दशहरा था, और उसमें भी वो रामलीला वाले बहुत जुलूस निकालते थे, कोई जुलूस नहीं निकालने दिया गवर्नमेंट ने। तो किसी तरह कोई तासुब का मैटर नहीं है कि मेरे साथ कुछ तेरे साथ कुछ, बल्कि वो एक मजबूरी है जो सबके साथ लायक है। तो वायरस को मद्देनज़र रखते हुए कि वायरस इसमें जो है जुलूस में चूँकि लाखों का मजमा होता है तो कोरोना फैलने का ख़तरा है बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा इस वजह से उन्होंने इस गाइडलाइन के मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया कि जुलूस नहीं उठाया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।